of weighted average cost of capital. Hope you remember the last numerical that we have covered. This is your numerical where we calculate the cost of capital, or we can say the weighted average cost of capital or overall cost of capital of the firm, where our source is debt, preference share, equity share, capital. We calculate this with the help of book value. Then in book value I told you about the two methods. Okay, one is this method and second is overall cost. Now we take the same numerical where we are going to calculate the cost of capital with the help of market value weight. Remember, market value weight means now you are calculating the value of capital with the help of the rate which are prevailing in the market. आपके मार्केट में पर्टिकुलर कॉस्ट या इक्विटी शेयर है, आपकी प्रेफरेंस शेयर है और डेप्ट है, उसका एट प्रेजेंट जो रेट है, ठीक है, उस रेट के बेसिस में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. In this question, we are assuming we have a retained earning of rupees 1 lakh. In the same question, 1 lakh is our retained earning. Retained earning means the profit which is not distributed to the shareholder, equity shareholder. We retain it, या हमने अपनी कंपनी में इसको रखा हुआ है for the growth or for the investment purpose. Okay, for the purpose of growth. Now here, see, here we have a debt capital whose market value is 2,70,000, preference share whose market value is 2,30,000, and equity and retained earning 7,50,000. Now please note that we have a same मार्केट वैल्यू फॉर इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग. जो इक्विटी की वैल्यू होती है या इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वही हमारी रिटेन अर्निंग की भी वैल्यू होती है और कॉस्ट होती है. ओके, क्योंकि हमने वो अमाउंट जो इक्विटी को देते, हम इक्विटी शेयर होल्डर को हम देते, वही हमने रिटेन किया है, दैट्स वाई. ठीक है, हेयर द टोटल इज 12,50,000. नाउ हाउ यू कैलकुलेट? फर्स्ट वी calculate or we can distribute, or we can say we have to find out the market value of equity and retained earnings separately. Okay, equity in book value we have 4 lakh and retained earning 1 lakh. हम book value के basis में इसकी market value को जो है distribute करेंगे. आप wait करोगे, ठीक है. यहाँ पर आपकी equity और रिटेन अर्निंग जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, आपकी बुक परसेंटेज कितनी है इक्विटी की? 80 और रिटेन अर्निंग की 20. ठीक है, मीन्स टोटल यू हैव अ 5 लाख इक्विटी और रिटेन अर्निंग की. तो इक्विटी का वेट कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 5. रिटेन अर्निंग का 1 लाख डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, तो 80 एंड 20% का आ गया. नाउ अब 80 एंड 20% में आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने मार्केट वैल्यू को. 7,50,000 को जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्विटी और रिटेन अर्निंग में विद द हेल्प ऑफ दिस वेट. मीन्स 80% ऑफ 7,50,000 इज फॉर इक्विटी एंड 20% ऑफ 7,50,000 इज फॉर रिटेन अर्निंग. So this is our market value of equity and retain earning. Okay students, now it becomes simple. Now how you will going to calculate on the basis of market value? Source debt, preference, equity and retain earning. The market value of debt 2,70,000, preference share 2,30,000, equity जो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो हमने बाइफर्केट किया हुआ है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूज़ को, वो आपने ली 6 लाख एंड 1,50,000. देन द कॉस्ट 8, 14 जो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन ये कंटिन्यू हो रहा है तो हमने वही वाली कॉस्ट यहाँ पर लेंगे. ठीक है, नाउ 17 बिकॉज इक्विटी की जो कॉस्ट है वही आपकी रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट होगी. ठीक है,
आपने 1717 ली. नाउ कैलकुलेट इट. टोटल कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 8% ऑफ 2,70,000, 14% ऑफ 2,30,000 एंड सो ऑन. ठीक है. देन total cost is 1,81,300 and total market value of the capital 12,50,000 into 100. It means on the basis of market value you have overall cost of capital is 14.5%. Now in the same question we are going to calculate with the marginal weight. Now the question is, what is marginal weight? बेटा देखिए, मार्जिनल वेट का मतलब होता है कि हमने जो एडिशनल कॉस्ट अरेंज करी है, कैपिटल अरेंज करी है अपने बिजनेस के लिए, हम उस एडिशनल कैपिटल के बेसिस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. यहाँ पर जैसे कंपनी ने विश किया है, विश टू रेज अ 5 लाख फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्लांट. इट एस्टिमेट दैट 1 लाख विल बी अवेलेबल एज अ रिटेन अर्निंग. जैसे अभी क्वेश्चन में आपने ऊपर देखा, रिटेन अर्निंग के लिए हमें 1 लाख मिल रहा है. और बैलेंस अमाउंट जो है 4 लाख, वो कैसे अरेंज कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट और प्रेफरेंस कैपिटल से अरेंज कर रहे हैं. 3 लाख फ्रॉम डेप्ट एंड 1 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर. मीन्स ये 5 लाख कंपनी एक्सपेंड करने के लिए अरेंज करना चाहती है, जिसको उसने अरेंज कैसे किया है? 1 लाख रिटेन अर्निंग, 3 लाख आपकी लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर. तो अब हम लोग मार्जिनल वेट का मीन्स ये जो 5 लाख है इसके बेसिस में कैलकुलेशन करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की. नाउ सी दिस. डेप्ट 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, रिटेन अर्निंग 1 लाख. ठीक है. इनका आपने परसेंटेज निकाल लिया, प्रपोर्शन, और यू कैन से वेट. सेम मेथड, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 lakh divided by 5 lakh, 1 lakh divided by 5 lakh. Now the cost will be same, only weight will change. 8, 14 and 17 total cost. On the basis of marginal, we have the total cost of capital is 11%. Okay students, hope you understand this numerical very well. Now we are going to start another numerical. This one. Now this type of numerical generally comes in the exams. In this PES has a following capital structure. आपका जो capital structure है PS कंपनी का वो given है आपको, which is considered to be optimum. The component of capital proportions are, this is the weight. ओके उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है और ऑप्टिमम मांग रहे हैं. मीन्स वो क्या मानते हैं कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिससे उनकी ओवरऑल कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी और जो कैपिटल वो अरेंज उन्होंने की है वो मैक्सिमम करी है. ठीक है. तो दे हैव अ इक्विटी 60%, डेब्ट 25% एंड प्रेफर्ड स्टॉक और प्रेफरेंस शेयर इज 15%. नाउ PS expected net income this year is 30% and tax is 40%. In future, the dividend are expected to grow at a constant rate of 9%. अब ये क्या है आपका? ग्रोथ आ गई आपकी. ठीक है. और लास्ट ईयर दे हैव पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹3.6. इट मीन्स इस ईयर वो जो डिविडेंड देंगे उसमें ग्रोथ ऐड करनी होगी आपको, क्योंकि दे ऑलरेडी पेड दिस. कंपनी शेयर is selling at currently ₹54 per share. Right now the price of share is 54. PS can obtain a new capital in the following way. अब नई कैपिटल जो उन्हें अरेंज करनी है वो कैसे होगी? प्रिफर्ड न्यू प्रिफर्ड स्टॉक with the dividend of ₹11 and it can be sold at ₹95 per share. Okay. मीन्स उन्होंने अपनी जो कैपिटल अरेंज करनी है नई कैपिटल वो कैसे कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं. प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड वो क्या कह रहे हैं? ₹11 एंड उसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या है? 95. डेप्ट है 12%. अब आपको डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट को भी और टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी, मीन्स वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
अब इसके लिए इट इज़ एडवाइजेबल, सबसे पहले आप सारी कॉस्ट को निकालेंगे. वी हैव अ इक्विटी, क्योंकि आपकी क्वेश्चन में दे रखी है ऊपर. ठीक है, इक्विटी कितनी है आपकी. डिविडेंड कितना पेड हुआ था, 3.6 प्लस ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ है और डिविडेंड आपका ऑलरेडी पेड हो चुका है, तो इट मीन्स इट इज D1. 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, it means it comes 16.27%. Next is your cost of debt. Cost of debt is already given, that is 12%, but remember I told you cost of debt is always before tax, so we need to convert it into after tax by multiplying it 7.2%, because tax is 40%. Then cost of preferred stock, in this question it is given that in preferred stock they are giving 11 rupees as a dividend and market price is 95. Okay, now it comes 11.58%. अब आप इसकी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे. यहाँ पर जो वेट आपको दे रखा है वो ये दे रखा है ऑलरेडी, 60% इक्विटी, 20% डेप्ट एंड प्रेफर्ड स्टॉक 15%. तो आपको ओवरऑल इक्विटी, डेप्ट और ये सब कितनी इसकी ज़रूरत हमें नहीं, बिकॉज ऑलरेडी दे कैलकुलेटेड द वेट, they give you the calculated weight value. Okay, now see how you will calculate weight of equity into weight of equity into cost of equity plus weight of debt into cost of debt plus weight of preferred stock into cost of preferred stock. 60%, 25% and 15% and their respective cost, you will get 13.30%. Okay students, hope you understand how to calculate weighted average cost of capital. And if we are talking about weighted average cost of capital, it means it is a cost of capital, overall cost of capital, and it is also a required rate of return. एक्चुअल में जितनी कॉस्ट आपकी है एटलीस्ट उतना तो रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट में मिलना चाहिए. तो ये हमारा एक बेस बताता है कैपिटल बजटिंग के लिए भी कि इतना मिनिमम रिटर्न वी नीड फॉर आवर इन्वेस्टमेंट. अगर हमारे इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न भी हमें नहीं मिल रहा है तो वी डोंट गो फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ. समटाइम्स यू गेट in a real life also you get the dividend value, but you don't know how to calculate the growth and all. So now in this question I will tell you how to calculate the growth. Suppose take this example, Skyway company provided the following details and requested you to compute equity stock value. रियल लाइफ में भी आपको इस तरह से जो है डेटा मिलता है ईयर वाइज ईयर, और डिविडेंड कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया है. अब आपको इसके बेसिस में बताना है कि आपके मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका 2001 में डिविडेंड 4 दिया उन्होंने, 2002 में 4.20, देन सो ऑन एंड एट लास्ट दे गिव अ 5. नाउ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14% एंड 6 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मीन्स 6 अभी दिया नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल गिव अ 6 एज अ dividend. So it is already a D1, so we don't need to calculate it by D0 bracket 1 plus G, means आपको ग्रोथ ऐड करने की ज़रूरत अब नहीं है. सबसे पहले अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रोथ चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेबल में जो डिविडेंड है इसमें ग्रोथ ट्रेंड क्या है. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू डिटरमाइन अ ग्रोथ रेट, वी नीड टू डिटरमाइन द क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर टेबल. ठीक है, आप इंटरेस्ट फैक्टर टेबल जो है हमारी, जहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू देखते थे, उस टेबल की हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे अपनी ग्रोथ को. इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको देखना है कि लास्ट ईयर ग्रोथ कितनी दे रखी थी 2007 में, 5 रुपीज़ 5. ठीक है, और बेस में हमारी ग्रोथ कितनी, हमारी डिविडेंड कितना था 4. एज कम्पेयर टू 2001, 2007 में हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आप चेक कर रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 1.25. अब 1.25 को आप लोग जो है फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखेंगे कि आपका कौन से ईयर में देखेंगे. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ठीक है। 6th ईयर में आप देखेंगे, क्योंकि ये तो बेस है हमारा, तो 6th ईयर में आप चेक करेंगे कि सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाइज कौन सी परसेंटेज में आ रही है। ठीक है, 6th ईयर में रो में आपने सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखी 1.25 की, जो सबसे क्लोज वैल्यू होगी वो आपकी 4% में आ रही है, तो इट मीन्स द ग्रोथ रेट इज 4%. Okay, now put this value in the formula. Your dividend, whatever you are going to pay, they already given 6, then required rate of return is 14% minus growth. Okay, you get 60 rupees. It means at present अगर हम इतना डिविडेंड ये कंपनी दे रही है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 2008 में 6 रुपीज़ जो है एज ए डिविडेंड देंगे, तो हमारे मार्केट प्राइस क्या होगा उस शेयर का, ₹60. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज हियर. From the under mentioned facts, determine the cost of equity share of the company X. Okay, of the company X. Current market price of the share is ₹150. Cost of flotation per share on a new share is ₹3. It means market price share का कितना है 150, एंड आपका फ्लोटेशन कॉस्ट जो न्यू शेयर वो इशू करेंगे उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है ₹3, एंड डिविडेंड जो वो पे कर रहे हैं ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर 5 ईयर में उन्होंने जो है वो ये पे किया है. मीन्स फर्स्ट ईयर में दे हैव पेड 10.50 रुपीज़, then so on, and 6th year में they have paid 13.40 as a dividend. Now assuming dividend payout ratio is fixed, means जो डिविडेंड वो दे रहे हैं जिस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट से डिविडेंड देते हैं वो फिक्स है उनका. ठीक है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड है जो नया शेयर आपका होगा एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, उसमें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि वो 14.10 पर शेयर डिविडेंड पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को. ओके, तो दिस इज अगेन अ D1, वी डोंट नीड टू ऐड. ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द ग्रोथ, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि डिविडेंड सेम नहीं है, 10, 11, 11, 12 ऐसे आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज सम ग्रोथ, तो उसका ट्रेंड आप निकालेंगे. अगेन द सेम मेथड, लास्ट ईयर 13.40 डिवाइडेड बाय द बेस 10.50. ठीक है, और कितने ईयर में देखेंगे आप, 5 ईयर में. क्यों, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर, क्योंकि फर्स्ट इज द बेस. आपने देखा कि 1.276 जो है रुपी सम में कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, 1.276 5th ईयर में 5% इंटरेस्ट में, तो इट मीन्स 5% इज अवर ग्रोथ रेट. देन कैलकुलेटेड, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस हमारा देखिए शेयर आपको कितने का दे रखा है, करेंट मार्केट प्राइस इज 150, बट उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी माइनस होगी. ठीक है, ₹3, then plus growth you will get 14.6%. It means 14.6% is the current market price of your is the cost of equity, is the current cost of equity for your share. Now the next numerical, in this numerical you have XYZ as the following book value of the capital structure. Okay, these figures are in crore. Okay, we have written there ₹15 means 15 crore, 1 means 1 crore. Okay, equity capital जिसकी प्राइस क्या है, ₹10 each, fully paid up है at par ₹15 crore. Then preference share, then retained earning, then debenture and term loan. These are the percentage of interest and dividend. Okay, now the information was this. Next expected dividend on equity share per share is ₹3.60. डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 3.60. ओके,
तो इट मीन्स यू नो डोंट नीड टू एड ग्रोथ एंड ऑल, ये ऑलरेडी आपको बता दिया उन्होंने. एंड 7% इज अ ग्रोथ एंड मार्केट प्राइस इज 40. देन प्रेफर स्टॉक, redeem after 10 year, currently selling at 75 rupees per share. Then debenture, redeem after 6 year and current price is 80. Income tax rate is 40%. You need to require calculate a weighted average cost of capital on the basis of book value and on the basis of market value both. Now, first of all, you see in this question there is nothing is given regarding what is the cost of capital, equity and all. So now you need to calculate first the cost. Okay, now the cost of equity, dividend आपके पास है, ठीक है, D1 divided by your market price plus growth 16%. Then because it is redeemable, तो हमने redeemable का फॉर्मूला यूज़ किया. Your dividend redeemable value 100, अभी प्राइस क्या है 75 डिवाइडेड बाय कितने दिन कितने साल में रिडीम होना है 10 ईयर में, द एवरेज प्राइस यू विल गेट 16.57%. ये दोनों आपके ऑलरेडी आफ्टर टैक्स हैं. डिविडेंड का मैंने आपको पहले डिवेंचर का आपको पहले बताया था कि आफ्टर टैक्स नहीं होता है, बिफोर टैक्स होता है. दैट्स वाई वी एडजस्ट द टैक्स ओवर हियर. हमने इंटरेस्ट कितना दिया है 11.5. ओके, आफ्टर टैक्स हमारा इंटरेस्ट कितना होगा इंटू 1 माइनस 0.4. नाउ प्लस कैपिटल गेन वट एवर 100 आपका रिडीम होगा और 80 इस समय करंट प्राइस है डिवाइडेड बाय कितने साल में रिडीम होना है 6 ईयर में. देन एवरेज यू विल गेट 11.37%. नाउ द टर्म कॉस्ट ऑफ टर्म लोन. इन केस ऑफ लोन में इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं. रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट इज अलाउड एक्सपेंसेस फॉर द टैक्स पर्पस, तो हम उसे एक्सपेंसेस की तरह दिखाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारा बिफोर टैक्स है, हमने उसमें टैक्स पे नहीं किया है, इसलिए हम इसे आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करेंगे. टैक्स कितना था 40%, तो हमने इसे आफ्टर टैक्स कर दिया 11% इंटू 1 माइनस 0.4, इट मीन 6.6. क्लियर नाउ? नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट, दिस इज द टेबल. इक्विटी यू हैव 15 करोड़, हमने 15 करोड़ में लिखी. मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप इन जीरोस को रिड्यूस करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर आपकी 1 करोड़. देन रिटेन अर्निंग आपकी क्वेश्चन में गिवन थी 20 करोड़. डेप्ट आपकी 10 करोड़ एंड टर्म लोन कितना था 12 करोड़ 50 लाख. टोटल इज 58 करोड़ 50 लाख. नाउ दिस इज योर प्रोपोर्शन वेट, यू कैन से कैसे आपने कैलकुलेट किया 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 58 करोड़ 50 लाख. ठीक है, आपका वेट आ गया. ये कॉस्ट आपने आफ्टर टैक्स हमने अभी कैलकुलेट करी जो वो आ गई मल्टीप्लाइड. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई आपकी 13.206. क्लियर स्टूडेंट्स? हाउ यू विल गेट दिस, मल्टीप्लाई द वेट इनटू कॉस्ट. 0.256 मल्टीप्लाई 16%. ओके, नाउ how to calculate the market value on the basis of market value. Market value में calculate करने के लिए we need to calculate the weight first. Okay, अब weight आप calculate करेंगे. weight कैसे calculate होगा, अब here see how many equity share you have, number of equity share the 15 करोड़. ठीक है, आपने एट द रेट ऑफ 40, मार्केट प्राइस क्या है, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम सब जगह मार्केट प्राइस लेंगे. तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ इक्विटी इज 40 मल्टीप्लाइड 60 करोड़ आपके पास आ गए. अब 60 करोड़ को जो है अब जो है चेंज करेंगे, बाइफरकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू जो हमने पहले की थी. 15 करोड़ और 20 करोड़, 15 करोड़ इज इक्विटी एंड 20 करोड़ की आपकी रिटेन अर्निंग थी. सी हियर the book value, this is 15 and this is 20. अब इसी के बेसिस में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 60 के बेसिस ये आपका क्या आ गया 15 एंड 20 आपका वेट आ गया. इसके बेसिस में आप किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, दे 60 करोड़. ओके, तो 60 करोड़ का आपने किया तो 25.71 आपके लिए जो है
इक्विटी का आया और 34.29 आपका किसका आया, रिटेन अर्निंग का, मार्केट प्राइस। अब आया आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं आपके पास, 1 लाख एट द रेट ऑफ 75। ओके, अब 1 लाख है 75 रेट पे, तो आपका कितना हो गया 75 लाख। देन डिवेंचर्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ डिवेंचर्स यू हैव 10 लाख एट द रेट ऑफ 80, तो यू हैव 8 करोड़। देन टर्म लोन आपका कितना है 12 करोड़ 50 लाख। ओके, तो इट मीन्स 12.5। अब ये जो हमने कैलकुलेट करे मैंने 12.5 8.75 ये कैसे किए, यहाँ से। इसको इजी करने का तरीका है, आपने क्या किया, इक्विटी की पूरी वैल्यू लिखी करोड़ में, प्रेफरेंस शेयर की, डेब्ट की और टर्म लोन की। यहाँ पर 30 कॉमन है, हटा दिए। यहाँ 2 0 कॉमन है, हटाए। यहाँ पर हमने 0 से कॉमन हटाए। अब यहाँ पर 75 आ रहा है तो हमने 0.75 लिखा, मीन्स वी हैव कन्वर्टेड होल वैल्यू इनटू करोड़। ठीक है, तो इट मीन्स जब आप करोड़ से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 60, जिसको आपने बैफिकेट करा है 25.71 एंड 34.29 में। देन 0.75। अब आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जैक्ट की वैल्यू चाहिए, सिंपल मल्टीप्लाई विथ करोड़। ओके, देन 8, देन 12.5। अब आपको इतने सारे जीरो यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल करोड़ एक यूनिफॉर्म फिगर लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इक्विटी कैपिटल जो यहाँ पर आपको दे रखी थी 25.71, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.75 और यहाँ हमने क्या लिख दिया अमाउंट के नीचे, इन करोड़। ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वेट। वेट आपने कैसे कैलकुलेट किया, अगेन द सेम मेथड, 25.75 प्लस 34.29 प्लस 8 प्लस 12.50। ओके, यू गेट 81.25। अब इसका वेट कैसे निकलेगा, 25.71 डिवाइडेड बाय 81.25। आपने वेट निकाल दिया सबका ऐसे ही। कॉस्ट आपकी सिमिलर रहेंगी, ठीक है, द डिफरेंस इज ओनली इन दिस वेट। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस आपका वेट अलग होगा, बुक वैल्यू का वेट अलग होगा, एंड द कॉस्ट इज हाउ यू हैव कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, जस्ट वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, you will get 14.087, the total of this. So it means on the basis of market value, the overall cost is 14.087. Okay student, hope you understand it very well. This is all about cost of capital. Now in next lecture we are going to start our next topic of financial management. Okay,